Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class Learn English with me Kajal. Students, your today's topic is the clause. The clause. स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न भी होने लगता है इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत शॉर्टली ही बताया है सब कुछ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद मी। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज. Clause are small sentences added in a big sentence which keep subject and verb. स्टूडेंट्स, क्लॉज आपकी वो छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं जो एक बड़े सेंटेंस में ऐड होते हैं और ये सब्जेक्ट तथा वर्ब को रखते हैं। नेक्स्ट इज, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज. सी व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज. Clauses which have complete clear meaning and complete in themselves called principal clause. स्टूडेंट, जिन उपवाक्य के कंप्लीट मीनिंग होते हैं तथा वो खुद में ही पूर्ण होती हैं आपकी प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती हैं. एग्जाम्पल, आई लिव एट आगरा विच इज़ अ बिग सिटी. सी स्टूडेंट, हेयर इज योर टू सेंटेंस. दिस इज योर क्लॉज, दिस इज योर सेकेंड क्लॉज एंड इट हैव कंप्लीट मीनिंग themselves. Next is students, next part of your clause is subordinate clause. See what is subordinate clause. Clause which are dependent on another clause for complete and clear meaning called subordinate clause. Student, वो clause आपकी जो clear और complete meaning के लिए दूसरे clause पर depend होती हैं आपकी subordinate clause कहलाती हैं. Example is, this is boy who came here. See student, here is your two clauses. This is the boy and who came here. तो ये आपके एक दूसरे पर दोनों डिपेंड हैं. जो लड़का यहाँ आया यही वो लड़का है जो यहाँ आया था. तो स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे पर डिपेंड है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज द नाउन क्लॉज. Understand what is the noun clause. Noun clause is clause which works as noun in the sentence. Student, noun clause आपकी sentence के अंदर noun की तरह कार्य करती हैं. Noun clause can work as 5 types. First is subject to a verb. Example देखिए, what he said pleased me. आपको कॉमा के अंदर जो जितना लिखा हुआ है स्टूडेंट, what he said is your subordinate noun clause. Note, on questioning what in principal clause we can get our clause. Second is noun clause works as object to a verb. See example, he said that Hari was a thief. Here Hari is your subordinate noun clause which is working here as object. Students, note for object to a verb, on questioning what and whom in sentence we can get our object to a verb. Its verb is transitive. स्टूडेंट्स, आपकी जो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब में नाउन क्लॉज में ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब होता है उसमें आपकी वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव होती है ऑलवेज. थर्ड इज ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन. एग्जाम्पल देखिए, इट ऑल डिपेंड हाउ सी डज. हेयर हाउ सी डज इज योर सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज which is here working as object to a preposition because it is added here with noun student. So this is your object to a preposition. See next, D, complement to the verb. This is what I wanted to say. Here I wanted to say is your noun clause, subordinate noun clause which is complement to the verb. CE, fifth part of this. K is in opposition to a noun or a pronoun. See example, it is certain whether he will come. Student, whether he will come is your subordinate noun clause here. See note, it's a clause news and with in opposition. Students, K is in opposition to a noun और pronoun आपकी हमेशा एक न्यूज़ को ही शो करती हैं.
स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए, रिलेटिव क्लॉज। क्लॉज का आपका सेकंड टाइप है रिलेटिव क्लॉज। अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इज दैट क्लॉज, स्टूडेंट वन मोर थिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज, sorry, relative clause is also known as adjective clause. See what is adjective clause. Adjective clause is that clause which qualify noun or pronoun. आइडेंटिफिकेशन टू एडजेक्टिव क्लॉज। स्टूडेंट इधर हम आपको बताएंगे कि आप एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लाइक विच, हुज, होम, दैट एटसेट्रा दिख रहा है तो वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज ही होगी। बाय रिलेटिव एडवर्ब, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। स्टूडेंट अगर आपकी किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा दिख रहे हैं तो वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। थर्ड पॉइंट इज बाय, बट, सच, सेम एज। स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में आपको बट, सच, सेम एज दिख रहे हैं तो तब भी वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। Third part in subordinate clause, the adverb clause. See what is the adverb clause. Adverb clause are that subordinate clause which tells about verb, adjective और adverb of main sentence. Student adverb clause आपकी book clause होती हैं जो आपको क्रिया, adjective और adverb के बारे में बताती हैं। Example, she is so big that she cannot walk. See student, it is telling us about adjective, so this is your adverb clause. नाउ एडवर्ब क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट। आपको किसी भी सबऑर्डिनेट के एडवर्ब क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ सपोजिशन, एडवर्ब ऑफ माइनर। स्टूडेंट अगर आपको इतनी कंडीशन एडवर्ब की किसी भी सेंटेंस में दिख रही हैं तो वो आपकी एडवर्ब क्लॉज फॉर सबऑर्डिनेट होगी। आपको ये कंडीशन किसी भी सेंटेंस में अगर शो हो रही हैं, फिर से सुनिए, तो वो आपकी एडवर्ब क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट होंगी। स्टूडेंट्स एक और बात बताना चाहूँगी, लाइक ये वाला टॉपिक था एडवर्ब क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट, इसमें मैंने ये इसके आइडेंटिफिकेशन के रूल शॉर्ट में लिखे हैं। अगर आपको ये डिस्क्राइब में चाहिए तो मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है जो मैंने इसकी डिस्क्राइब करके वीडियो बनाई है, वो आप पूरी ही देख लीजिए, आपको पूरा क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा कि what is adverb of time, what is condition, adverb of condition, what is adverb place, what is purpose, what is comparison, what is result, what is supposition and what is manner। आपको पूरा ही वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके पूरी वीडियोस ब्रीफ में देख सकते हैं। नाउन क्लॉज की भी पूरी वीडियोस आप ब्रीफ में दे सकते हैं। नाउन क्लॉज में आप समझ सकते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट टू अ वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब और व्हाट इज ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब एंड व्हाट इज केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये आप पूरा का पूरा टॉपिक नाउन टॉपिक में समझ सकते हैं, मैंने बिल्कुल ब्रीफ में दिया है वहाँ पे। रिलेटिव क्लॉज भी समझ सकते हैं आप वहाँ से और एडवर्ब भी समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को चेक जरूर कीजिए। Now students, your third part of clause is coordinate clause. Understand what is coordinate clause. In this clause both clauses are complete themselves and not dependent on each other. Student coordinate clause आपकी खुद में ही complete होती हैं और किसी भी दूसरी clause पर depend नहीं होती हैं। There are 4 types of cumulative clause. First is cumulative conjunction and, not only but also, both, एंड नॉर एटसेट्रा। स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, नॉर एटसेट्रा दिख रहे हैं तो वो आपकी क्युमुलेटिव कंजक्शन होगा। एग्जाम्पल, ही वाज बोथ फाइन एंड एक्सपेल्ड, हियर वी यूज एंड, सो दिस इज योर क्युमुलेटिव कंजक्शन। सेकेंड इज अल्टरनेटिव कंजक्शन, आइदर और, नाइदर नॉर और एल्स अदरवाइज। अगर आपको ये वर्ड्स कहीं भी किसी भी सेंटेंस में दिख रहे हैं, आइदर और, नाइदर नॉर और एल्स अदरवाइज, तो वो आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा। सी एग्जाम्पल, आइदर पे फाइन और गो टू
to jail. Here we use either and or, so this is your alternative conjunction. Next is adversative conjunction. But yet, still, nevertheless, however, etc. अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड दिख रहे हैं तो वो आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन क्लॉज होगा. एग्जाम्पल इज ही इज लेजी बट ही इज श्योर. हियर वी यूज बट, सो दिस इज योर एडवर्सेटिव कंजक्शन क्लॉज. नेक्स्ट इज इलेटिव कंजक्शन. सो देयरफॉर, हैंस फॉर. ये वर्ड्स अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो आपका इलेटिव कंजक्शन क्लॉज होगा. एग्जाम्पल, ही इज डिलिजेंट देयरफॉर ही विल सक्सीड. हियर आई यूज देयरफॉर, सो दिस इज योर इलेटिव कंजक्शन. एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे कि क्युमुलेटिव कंजक्शन आपके किस सेंटेंस में आते हैं, अल्टरनेटिव किस सेंटेंस में आते हैं, और एडवर्सेटिव किस कंडीशन में आते हैं, इलेटिव किस कंडीशन में आते हैं. स्टूडेंट, क्युमुलेटिव और एडवर्सेटिव कंजक्शन आपके किस कंडीशन में आते हैं इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बता देती हूँ. जैसे कि मैंने आपके जो क्युमुलेटिव ये कंजक्शन बताए हैं वो आपके किस कंडीशन में सेंटेंस में आते हैं. स्टूडेंट, अगर किसी भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ऐड करना है तो आपके क्युमुलेटिव कंजक्शन आएंगे. इसके लिए शर्त ये है. और अल्टरनेटिव कंजक्शन आपके कब आएंगे ये भी देखिए. ये जो मैंने अल्टरनेटिव कंजक्शन बताए हैं ये आपके, ये अगर कोई भी सेंटेंस आपको ऑप्शन के रूप में शो हो रहा है, मीन्स अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दो ऑप्शन शो कराए जा रहे हैं तो आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन आएंगे. नेक्स्ट, आपके एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज कब होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, बट येट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, एटसेट्रा. इनका यूज आपका होगा जब किसी भी सेंटेंस का परस्पर विरोध होगा स्टूडेंट, तब आपके एडवर्सेटिव कंजक्शन आएंगे. नेक्स्ट देखिए, इलेटिव कंजक्शन आपके कब आएंगे स्टूडेंट, अगर किसी भी सेंटेंस में रिजल्ट, रीज़न अथवा कोई भी इमोशन शो हो रहा है तो आपके इलेटिव कंजक्शन आएंगे. सो देयरफॉर, हैंस, एटसेट्रा. स्टूडेंट, पूरा टॉपिक आपको मैंने शॉर्ट में, ब्रीफ में बता दिया है. जैसे भी आप समझ पाएँ समझ लीजिए. और अगर आपको वीडियो के बारे में ज़्यादा जानना है, पूरा डिस्क्राइब करके समझना है, तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस पर विजिट ज़रूर करें. तब तो आपको स्टूडेंट्स, वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें काफ़ी शॉर्ट तरीके से ही हर पॉइंट को डाला है. लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ऐसा ना सोचें कि आपको समझ नहीं आया है. आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस में जाएं, पूरा ब्रीफ में उधर पढ़ें और आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा.